کراچی میں کیبل آپریٹرز کے پریس کانفرنس میں جیو اور جنگ کے رپورٹرز کی ہنگامہ آرائی، کیبل آپریٹرز سے تلخ کلامی، پریس کانفرنس نہ ہو سکی۔ چیئرمین خالد آرائی کہتے ہیں کہ جیو کے نمائندوں نے غنڈہ گردی کی، جیو کو جیو بنانے والوں پر حملہ کیا گیا۔ جیو کے خلاف وزارت دفاع کی درخواست پر غور کے لیے پیمرا کا اجلاس 20 مئی کو طلب۔ میاں شمس نے کہا ہے کہ جیو کے خلاف پیمرا حرکت میں آنے لگی تو حکومت آڑے آ گئی۔ اسرار عباسی کہتے ہیں کہ قوم کی نظریں پیمرا پر لگی ہیں۔ جیو ٹی وی کے توہین آمیز مارننگ شو کے خلاف ملک بھر میں مذہبی تنظیموں کے مظاہرے۔ حافظ سعید کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جیو کو بند کرے۔ قومی اسمبلی میں بھی ارکان کا شدید رد عمل، پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس میں جیو ٹی وی کے خلاف پٹیشن دائر۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ الطاف حسین نے 1997 کے بعد شناختی کارڈ کے لیے درخواست نہیں دی۔ حکومت کو الطاف حسین کو شناختی کارڈ جاری کرنے میں اعتراض نہیں، لیکن نادرہ کسی کو شناختی کارڈ دینے گھر نہیں جاتی، سائل کو نادرہ کے پاس آنا ہوتا ہے۔ الطاف حسین کو شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر متحدہ کا اسلام آباد، کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ عابد شیر علی کہتے ہیں الطاف حسین پاکستانی نہیں رہے، غیر ملکی کے لیے شہریت کے حصول میں وقت لگتا ہے۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کی ریلی کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر پولیس تشدد ناقابل قبول ہے۔ مسلم لیگ کا بھی اتوار کو مہنگائی اور توانائی بحران پر حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان۔ بھارتی لوک سبھا کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتحاد کی واضح برتری، انتہا پسند رہنما نریندر مودی ممکنہ وزیر اعظم۔ کانگریس نے شکست تسلیم کر لی، عام آدمی پارٹی کی مایوس کن کارکردگی۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے نریندر مودی کو بی جے پی کی کامیابی پر مبارکباد۔ سندھ ہائی کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف 2 درخواستیں دائر۔ ملک ریاض عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب کسینو کلب اور 2 سینما تعمیر کروا رہے ہیں۔ 38 منزلہ عمارت کی تعمیر سے علاقے میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے مسائل پیدا ہوں گے، درخواستوں میں موقف۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی صاحبزادی ذل ہما کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ مرحومہ کی شاہ نور اسٹوڈیو میں تدفین۔ اور پی سی بی کی اجازت کے بغیر امریکہ میں کرکٹ کھیلنے والے پاکستانی کھلاڑیوں پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ کھلاڑیوں میں وہاب ریاض، فواد عالم، ناصر جمشید، عبدالرزاق اور شاہزیب حسن شامل۔ ارے تمہاری شرٹ کو شرٹ کا یہ حال ہے تو فیس کا سوچو۔ ہاں یہ لو۔ سوپ سے کیا ہوگا، ہم بائکرز کو چاہیے یہ میگنیٹ ایکشن فیئر اینڈ لولی مینس فیس واش، جس کا میگنیٹ ایکشن جمے ہوئے آئل اور پولوشن کو کھینچ نکالے۔ آئی سی مینتھول کے ساتھ دے کول انسٹنٹ برائٹ لک۔ میگنیٹ ایکشن فیئر اینڈ لولی مینس فیس واش۔ اب تک کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے اس خبر سے کہ کراچی میں کیبل آپریٹرز کی پریس کانفرنس جیو اور جنگ کے رپورٹرز کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ چیئرمین خالد آرائی پریس کانفرنس کیے بغیر لوٹ گئے۔ کراچی پریس کلب میں چیئرمین کیبل آپریٹرز خالد آرائی جیسے ہی پریس کانفرنس شروع کرنے لگے، جیو اور جنگ کے نمائندوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ کیبل آپریٹرز نے تلخ کلامی کی، جس کے بعد پریس کانفرنس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گئی۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز خالد آرائی نے کہا کہ جیو کے نمائندوں نے غنڈہ گردی کی، جیو کو جیو بنانے والوں پر حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ محفوظ مقام پر پریس کانفرنس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیبل آپریٹرز کی آواز دبانا کون سی صحافت ہے؟ ہماری آواز کو آج روکا گیا، پریس کلب میں مہمانوں کو گھر کی گئی ہے، ہماری آواز کو جیو ٹیلی ویژن نے روکا، ہمارے موقف کو سامنے نہیں آیا گیا اور میرے ساتھیوں پر مجھ پر حملہ کیا گیا، میرے کیبل آپریٹر کو گالی دی گئی،
ये सियासत जाती है, ये जियो टेलीविजन की शकील रहमान से कहता हूँ, इस तरह की गुंडागर्दी करनी है। आज जियो टेलीविजन जो कुछ भी है वो केबल ऑपरेटर की वजह से, आज केबल ऑपरेटर को रोका गया। आज जिन लोगों ने जियो को जियो बनाया उन केबल ऑपरेटर खिलाफ इसका गंदे इस्तेमाल किए गए। 18 लोग बताएंगे। जियो न्यूज के मामले पर हुकूमत से इख्तिलाफ रखने वाले पैमरा अरकान ने 20 मई को इजलास बुलाकर फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। पैमरा रुकन मियां शम्स ने कहा है कि ARY और कैपिटल टीवी के लिए कानून हरकत में आ सकता है तो जियो के लिए क्यों नहीं, जबकि पैमरा रुकन इसरार अब्बासी का कहना है कि आज का इजलास मनसूख करने से पता चल गया कि हुकूमत मदाखलत कर रही है। अगर ये पैमरा का कानून कैपिटल टीवी और ARY पे वो कायदे आजम साहब की रेजिडेंसी के केस पे, तो उस पे ये अगर हरकत में आ सकता है, तो ये जियो के खिलाफ जब हरकत में आने लगा तो गवर्नमेंट की तरफ से ये दलील दी गई कि हम दलील के साथ हैं, गुलेल के साथ नहीं है। 7 तारीख को ये एहसास हो गया था कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है। जियो टीवी के तौहीन आमेज मॉर्निंग शो के खिलाफ मुल्क भर में मजहबी तंजीमों ने मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि साहबाए कराम और अहले बैत की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजहबी तंजीमों ने मुतालबा किया कि जियो को बंद करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में नागन चौरंगी पर अहले सुन्नत वल जमात के तहत जियो के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मौलाना औरंगजेब फारूकी ने कहा कि जियो के गौसला खाना मॉर्निंग शो से मुसलमानों की दिल आजारी हुई। सहाबा कराम और अहले बैत की तौहीन करने वालों की किसी सूरत माफी नहीं। इस्लामाबाद में जियो न्यूज के तौहीन आमेज मॉर्निंग शो के खिलाफ इमाम बारगाह सनाए अशरी से एहतिजाजी रैली निकाली गई। जियो के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेरे एहतमाम लाल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। तौहीन आमेज मॉर्निंग शो के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के सामने मुजाहरा हुआ। लाहौर में नमाज जुम्मा के बाद जियो के खिलाफ मुजाहरे किए गए। चौबरजी चौक में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीर जमात उद्दावा हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा कि साहबा कराम और अहले बैत की शान में गुस्ताखी नाकाबिले मुआफी है। जियो अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए चैनल को बंद करे। फैसलाबाद में जियो टीवी के मॉर्निंग शो में अहले बैत की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अंजुमन तलबा इस्लाम ने एहतिजाजी रैली निकाली। मुल्तान में मजहबी जमातों ने नमाज जुम्मा के बाद जियो टीवी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया और गुलशन मार्केट से मदनी चौक तक रैली निकाली। पेशावर प्रेस क्लब के सामने इमामिया राब्ता कौंसिल और PTI के ज़ेरे एहतमाम जंग और जियो के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जियो की मॉर्निंग शो में अहले बैत की शान में गुस्ताखी का मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्लामाबाद के थाना आपारा में दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त सैयद मंसूर शाह नामी शहरी की तरफ से दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अहले बैत की शान में गुस्ताखी पर जियो के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दरख्वास्त पर कानूनी राय लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जियो टीवी पर मुतनाज़ा मॉर्निंग शो नशर होने के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी और शहरी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने जियो टीवी बंद करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में अस्करी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जियो टीवी के खिलाफ किए गए एहतिजाजी मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहिरीन का कहना था कि अहले बैत की शान में गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्खर में मीनारा रोड पर एहतिजाज के दौरान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने टायर नजर आतिश किए, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। टंडोलियार में तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल और फैज़गंज में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जियो टीवी के खिलाफ एहतिजाजी रैलियाँ निकाली गयी। कश्मोर में प्रेस क्लब के सामने एहतिजाज करते हुए सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने फौरी तौर पर जियो टीवी की बंदिश का मुतालबा किया। टंडो जाम में शहरियों की जानिब से मालाकंड चौक से जियो और जंग ग्रुप के खिलाफ एहतिजाजी रैलियाँ निकाली गयी। शहजाद कोट और टंडो मोहम्मद खान में भी जियो टीवी पर तौहीन आमेज मॉर्निंग शो नशर होने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। गुजरांवाला और सरगोदा में भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जियो टीवी के खिलाफ निकाली गई एहतिजाजी रैलियों में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक थी। हाफसाबाद, मियांवाली, जहलम, चिचावतनी और पंडी भटिया में जियो टीवी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। डेरा इस्माइल खान और चार सद्दा में भी कारकुनान की टारगेट किलिंग, जियो टीवी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। और जियो टीवी के गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ, उनके शो के खिलाफ कौमी असम्बली में जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ अरकान ने शदीद एहतजाज किया है। MQM के अरकान अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। शाकिर सोलंगी की रिपोर्ट।
जियो के तौहीन आमेज मॉर्निंग शो के खिलाफ कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया गया। इस मामले पर जमशेद दस्ती ने इजहार ख्याल करने की कोशिश की तो स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया, जिस पर जमशेद दस्ती ने ऐवान में हंगामा खड़ा कर दिया। जमात इस्लामी के रुकन साहिबजादा तारिकुल्लाह का कहना था कि प्रोग्राम में अहले बैत की गुस्ताखी की गई है, जिसका नोटिस लिया जाए। इससे तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए हैं। ये इंतहाई नामुनासिब और शर्मनाक वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि माफी अपनी जगह, मगर इस रुझान का खात्मा होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फराहम न करने पर MQM अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। अफगानी और बंगालियों को 5,000 रुपये में शनाख्ती कार्ड इशू होता है और जो करोड़ों आवाम के लीडर है उसको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहे, तो ये अमल जो है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए नुकसानदेह है। आबिद शेर अली का कहना था कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी नहीं रहे, किसी भी गैर मुल्की के लिए शहरियत के हुसूल में वक्त लगता है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस लोग परेशान हैं। शेख रशीद ने हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। MQM अरकान का कहना है कि जब तक अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन नवीद मुगल के साथ शाकिर सोलंगी, इस्लामाबाद। अब तक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार मीडिया से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। कि कई दफ़ा डेटा लिया जाता है, उनको वो कागज़ दिया जाता है और उसके बाद वो 30 दिन के अंदर उस पर प्रोसीड नहीं करते। पिछले लंदन में पिछले साल में 107 ऐसे केसेस हैं जहां अप्लाई किया गया, उनका तो डाटा अपलोड भी हुआ, उनको कागज़ दिया गया, मगर उन्होंने फिर उसको मजीद प्रोसेस नहीं किया। 107 ऐसे केसेस हैं, ये 108वां है। वो अपलोड करने के लिए कोई मुश्किल या कोई इतनी, जो दूसरा मरहला है, मैंने क्योंकि मुझे इसी हवाले से पता चला तो मैंने कल ही ये डायरेक्शंस दी हैं कि नंबर 1, जिस तरह बैरूनी ममालिक में कोई शख्स जब तक नादरा के ऑफिस में न जाए तो उनका शनाख्ती कार्ड, जो भी उनका लोकल ऑफिस है, नहीं बन सकता, इस तरह अंदरून मुल्क भी बाय एंड लार्ज वैसे यही फॉलो किया जाता है, मगर हम इसी को अंदरून मुल्क भी कोई इक्का दुक्का ऐसी वाकयात हैं, वो आपने जिक्र किया, मुझे उसका नहीं पता, मगर यहां भी हम यही करने लगे हैं कि और इसी तरीके से जाली कार्ड्स का इजरा रोका जा सकता है कि उसी कैमरा से वहां ही बायोमेट्रिक्स हों। जब मोबाइल सिस्टम जाता है और बगैर किसी तरीकाकार के जाता है तो उसमें गुंजाइश होती है हेरा फेरी की। तो मैं यही तरीका इंशाल्लाह यहाँ उसका इतलाक करने लगा हूँ। जी, तो आखिर गवर्नमेंट क्यों इस रवायत को तोड़ने जा रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब को घर पे कार्ड देगी? क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया कि ही इज नॉट फिट टू ट्रेवल, बीमार हैं वो, उनका बाकायदा सुनने में आ रहा है कि ग्वांतानामो बे में जो नहीं, उनकी टांग में कोई तकलीफ है। जी, ग्वांतानामो बे में जो पाकिस्तानी थी उनको वापस लाने के लिए एफर्ट्स की जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, गुज़िश्ता रात रावलपिंडी में जो एक हुआ एक्सटॉर्शन की वजह से कह रहे कि एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 20 के करीब लोग जख्मी भी हुए। इस पिंडी इस्लामाबाद में एक्सटॉर्शन की बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं, अब ब्लास्ट करने पे आ गए हैं, इस हवाले से आप क्या सकते हैं? नहीं, अब ये बिल्कुल तय नहीं हुआ कि वो एक्सटॉर्शन की वजह से हुआ। अभी तक तो उस पर तफ्तीश जारी है, उस पर एक्सटॉर्शन का फिलहाल दूर। जी, मेरी गुजारिश है कि इस पे तफ्तीश हो रही है, जरा थोड़ा सा टाइम दे। अगर पहले हम इस पे एक ही चीज फोकस कर देंगे तो बहुत। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड का इजरा इतना बड़ा मामला नहीं है, अगर कवायद के मुताबिक तमाम चीज़ें हल की जाएँ तो मामलात हल हो सकते हैं। और इसी वाले से आपको ये भी बताएंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ MQM के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस और नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। मज़ीद तफसीलात हामिद अब्दुल माजिद की इस रिपोर्ट में। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस और नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। हम ना हो हमारे नारा है इनकलाब। MQM के पार्लिमानी लीडर रशीद गुडेल का कहना था कि हुकूमत अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करके हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। ये अपनी अना के खोल से बाहर नहीं आते और वजीर दाखिला
वो हकदर्मी पे कायम है। वज़ीर दाखिला को शायद ये इल्म नहीं है कि हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें जाती रहती हैं। वो अमल करके जाओ कि जब सीट पे ना हो तो आपको कोई इज्जत से सलाम करे। MKM के अरकान ने कहा कि अगर हुकूमत ने अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न किया तो हम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ कराची में नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करना सरासर ज्यादती है। कारसाज पर नादरा ऑफिस के सामने मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थे। शुरका से खिताब में MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि दुनिया भर में अल्ताफ हुसैन के करोड़ों चाहने वाले हैं। अल्ताफ हुसैन ने पूरी दुनिया में उनकी पहचान कराई। हमें इस तरह पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि अल्ताफ हुसैन मुहिब्बे वतन शहरी हैं। उन्होंने तमाम तकाजे पूरे करके शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दी थी। मुत्तहिदा के कायद को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी न करना वजारत दाखिला की दुश्मनी है। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में MKM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद में MKM के कायद अल्ताफ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड न मिलने के खिलाफ कारकुन सड़कों पर निकल आए और नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। नवाब शाह में अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड न मिलने के खिलाफ MKM कारकुनान का नादरा ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि कायद MKM को कौमी शनाख्ती कार्ड फौरी तौर पर जारी किया जाए। खैरपुर, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, कश्मोर और दीगर शहरों में भी MKM की जानिब से नादरा ऑफिस के सामने अल्ताफ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न होने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुल्तान में प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न करना पूरी कौम की तजलील है। दीगर अहम खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। अब तक के साथ रहिए। जब जाना हो जरूरी और करनी हो फौरी शेव तो एक बालों से भरे हुए रेजर पर मत करें भरोसा।